Good morning, class. Till the last day, we have finished with the moving coil galvanometer, and some special case we have done there. And except that, we have studied about the sensitivity, voltage sensitivity, and current sensitivity. Now, today we are going to discuss about the two main topics: ammeter and voltmeter using a galvanometer, which is a part of your experiments का भी part है and theory part भी है. And it's a basic question that usually comes in 2 marks questions. So how convert a galvanometer into ammeter and voltmeter in galvanometer into a voltmeter. तो galvanometer का ammeter में conversion और galvanometer का voltmeter में conversion. इस पे related आपको numericals 2 marks में मिल सकते हैं. And since it is a part of experiment, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है. We are going to start with that. Ammeter. As you all know that ammeter is a device which measures current. It is not to detect the current, it is to measure the current. Galvanometer is to detect the presence of the current, and ammeter is the name of the device that measures the current. Measure और detect में difference है. Detect means कि just वो detect करता है चीजों को कि is that their current is present or not, and how much current is there, that is done with the help of a ammeter. So as a galvanometer is a low resistance device. ये galvanometer क्या है? Low resistance device होता है. It can't be used for measuring the current in a circuit. इसका हम use circuit में current को measure करने के लिए नहीं कर सकते. For small value of current, it will give a full deflection. जैसे आपने देखा था moving coil galvanometer में, क्योंकि वो current sensitive होता है. For a small change in the current, it gives a full deflection. एक heavy deflection देता है, full scale deflection देता है for a small change in current. And for a large value of I, अगर मैं I की वैल्यू को बहुत large करूंगा, that means deflection becomes so long that कि वो आपके स्किल को क्रॉस कर जाएगा. इसलिए हम galvanometer को as an ammeter यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, या हाई वैल्यू करंट के लिए हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते. Galvanometer main meter may get damaged because of the two reasons. अगर हम ऐसा करते हैं, करंट की ज्यादा वैल्यू कर देते हैं, तो galvanometer के चांसेस है कि क्योंकि वो आउट ऑफ स्केल जा रहा है तो वो डैमेज हो जाएगा. तो इसके दो पॉसिबल रीजन है. फर्स्ट रीजन तो यही है आपका कि व्हेन करंट इज एक्सीडिंग अ सर्टेन लिमिट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से आउट करा जाएगा. दूसरा रीजन है, एज वी नो दैट जूल्स हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, दैट H is equal to I square RT. If I is going to be large, then the amount of heat is also going to be large. यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है. दैट इज अनदर रीजन. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ पे आपको फर्स्ट रीजन आपको डिफाइन किया गया है. For the large value of current, the angle of deflection, which is nothing but alpha, जो कि हमने वहां पे देखा था, which is angle between that plane of the rectangular file and जो आपका normal आपने ड्रॉ किया था उनके बीच का एंगल था. So that angle of deflection जो होता है alpha is larger. अगर I हम increase करेंगे, angle of deflection will be larger, and the pointer is going out of the scale, and it will be the condition that कि आपका pointer break हो जाएगा. For the point large current, heat is also large, which may damage the galvanometer. So, considering these two situations in mind, we can't use for a large value of current. Therefore, we need to develop an ammeter using a galvanometer. To convert a galvanometer into an ammeter is our next topic. It requires a range, a small resistance S. अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर का जस्ट एक रेंज होती है, हमें उसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है विद इन ए डिजायर्ड रेंज, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? वी हैव कंसीडर्ड अ रेजिस्टेंस एस. हम एक एस वैल्यू का एक रेजिस्टेंस देंगे विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा. अब ये एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इट बिहेव एज ए एमीटर? दैट इज अवर मेन पर्पस. हम इस एस की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर बिहेव करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, हम इसको पैरेलल ही क्यों जोड़ रहे हैं उसका भी रीजन आपको मिलेगा. Here resistance S is connected in parallel to the coil of the galvanometer of resistance G. Capital G is the resistance of the galvanometer and S is the resistance of the shunt. The resistance in parallel is called shunt.
एस इज आल्सो कॉल्ड अ शंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन वी सी दिस फिगर, इस फिगर में हमने एज्यूम किया दैट दिस इज अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस जी। इसके पैरेलल में हमने एक एस वैल्यू का एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। एज वी नो दैट गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से ही लो होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एस भी एक इनसे मतलब प्लेस किया है विच इज आल्सो स्मॉलर। ये भी क्या है, स्मॉल वैल्यू है। And we know that when two now resistors are connected in parallel, so equivalent resistance is given by the formula RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2। वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 10 के अंदर, और इससे पहले भी हमने ओम्स लॉ वाले टॉपिक में वो पढ़ा है सीरीज इन पैरेलल के केस में, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। Since here the connection is parallel connection, therefore potential difference across the galvanometer and potential difference across the resistance remains same। क्योंकि जब पैरेलल होता है तो करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो करंट को हमने डिवाइड कर दिया, वन पार्ट इज बीइंग एज आई जी, करंट को गैल्वेनोमीटर, अनदर पार्ट इज आई माइनस आई जी। इफ वी सपोज दैट आई इज अ टोटल इनिशियल करंट, तो यहाँ पे करंट के दो सेक्शन हो गए, एक आई जी हो गया, एक टोटल आई माइनस आई जी हो जाएगा, विच मूव थ्रू द एस शंट रेजिस्टेंस से जाएगा। Therefore, potential difference across the shunt is equal to the potential difference across the galvanometer। तो शंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल निकालेंगे आई इंटू आर करके, आई इज आई माइनस आई जी, टोटल करंट जो है वहां पे इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विच इज नथिंग बट करंट इंटू रेजिस्टेंस। फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस विच इज नथिंग बट आई जी अपॉन 1 माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ये एक रिलेशन आई है जहां पर हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है। Just note here that the resistance of the galvanometer is very much greater than the shunt resistance। तो galvanometer का रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पैरेलल में अटैच कर देते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑन कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमने एस वैल्यू कैलकुलेट, एस की वैल्यू कैलकुलेट की यूजिंग दैट फॉर्मूला, अगर उतनी ही रेजिस्टेंस का कोई हम रेजिस्टेंस वायर लें और जी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें, इट विल वर्क एज एन एमीटर। अब उसका वर्क कैसा हो जाएगा, एज एन एमीटर हो जाएगा ऑफ द रेंज 0 to 1 एम्पियर। क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा था कि गैल्वेनोमीटर की एक स्केल है, तो गैल्वेनोमीटर की जो भी स्केल होगी दैट बिकम द रेंज ऑफ द एमीटर। जितनी भी गैल्वेनोमीटर की स्केल थी वही आपका क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ एमीटर बन जाएगा। सपोज 0 to I एम्पियर। अब शंट के बारे में क्या स्पेशलिटी होती है, शंट आर द लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू जी। एमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। कभी अगर आपको एमीटर मिले, एमीटर डिवाइस को आप ओपन कीजिए एंड उसके अंदर देखिए, तो वहां पे आपके जो दो टर्मिनल होते हैं रेड एंड ब्लैक, उनके बीच में एक कनेक्शन किया जाता है, दैट इज अगेन अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड देयर। एंड गैल्वेनोमीटर में भी अगर हम ये कनेक्शन कर दें तो वो भी क्या हो जाता है, आपका एमीटर जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर। जब हम शंट को पैरेलल में लगाते हैं तो ये आपके एमीटर की रेंज को हाई कर देता है। प्रोटेक्टिंग स्ट्रॉन्ग करंट, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग करंट को। कैसे प्रोटेक्ट करता है, एज वी नो दैट इफ द रेजिस्टेंस इज very small, that means high value of current can go through it। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम पास आउट हो सकती है। तो इसीलिए जब हम अपनी फिगर, पिछले वाली फिगर को हम थोड़ा ध्यान दें, तो वहां पे हमने पैरेलल कनेक्शन किया है। क्योंकि जी की वैल्यू हाई है, कैपिटल जी की वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू एस, देयरफॉर जो अपर सेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का सेक्शन है, वहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, जबकि मैक्सिमम करंट आपका स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल जो आपका कैपिटल एस आपने यूज किया था, शंट रेजिस्टेंस यूज किया था, वहां से जो करंट पास होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जी गैल्वेनोमीटर वाले प्रोसेस से। तो इस तरह से आपके करंट को प्रोटेक्ट क्या कहते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग करंट को अपने में से पास कर देता है, शंट में से पास कर देता है। एंड आपका जो डिवाइस होता है वो सेफ होता है, ओवर हीटिंग के कारण वो खराब नहीं होता है। अब व्हाट इज एन आइडियल एमीटर, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। लाइक जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें ये बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का क्या मीनिंग है, आइडियल एमीटर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस।
हम रेजिस्टेंस को इतना स्मॉल कर दे रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, नियर बाय जीरो हो जाएगी। नियर बाय जीरो का मतलब है मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू। इफ द रेजिस्टेंस इज टू मच क्लोज टू द जीरो, दैट मीन्स देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। वहां पे ना तो करंट डिसिपेट होगा, ना ही आपकी हीट डिसिपेशन होगा, टोटल आपका करंट जो होगा वो पास आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, दैट इज 1/RA। सपोज दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कनेक्शन, एंड क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो आप 1/S प्लस 1/G यूज करेंगे, क्योंकि G और S दोनों ही आपकी स्मॉल वैल्यूज हैं। तो उनका इनवर्स अगर आप लेकर के इसको सॉल्व करते हैं एंड देन अभी इनवर्स निकालते हैं जो कि आपको RA निकालना है, देन इट कम्स नियरली इक्वल टू S। स्मॉल वैल्यू के आसपास ही आएगी, मतलब जो आपकी वैल्यू होगी वो बहुत लेस देन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आगे देखिए, G इंटू एस अपॉन में G प्लस एस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल G आपका S से काफी ज्यादा बड़ा है। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ S। देखो if हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स G S अपॉन में G, क्योंकि S की वैल्यू क्या है, निग्लिजिबल हो जाएगी। तो GS अपॉन में G बचेगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट विद S। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज अबाउट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। Before that, as we know that voltmeter is a device which measures the potential difference across the two ends of the connecting wire। अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उसके दोनों एंड पे हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को अटैच कर देते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करता है या मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टर। अब गैल्वेनोमीटर को हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, एज इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टर ड्यू टू अ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी वैल्यू लो रेजिस्टेंस की है और ये पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा किसी कंडक्टर के साथ, तो उसका यूज किया नहीं जा सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, अ लार्ज पार्ट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट ना करके हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वी टेक अ रेजिस्टेंस, सपोज हमने एक रेजिस्टेंस लिया R और उसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल G के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जब ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के अंदर हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ ए डिजायर्ड वैल्यू, जो आपकी एक वैल्यू होगी जिसका एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया होगा, उस वैल्यू का एक गैल्वेनोमीटर है। इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया है एंड दे आर कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ब्रांचिंग नहीं होगी है, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। लेट फॉर IG इज करंट फॉर द गैल्वेनोमीटर, गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब करंट की वैल्यू IG थी तो आपका डिफ्लेक्शन फुल आया था। लेट R बी द कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल R की एजम्पशन देनी है एंड दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपिटल G to convert into a voltmeter। Here IG is the current which passes the galvanometer and the capital R resistance। Resistance जो R था capital and G जो है they are connected in parallel, sorry in series, therefore equivalent resistance is G plus R। जब इस वैल्यू को हम अपने ओम्स लॉ के कंसेप्ट में यूज करते हैं, IG इज इक्वल टू V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज G प्लस R। तो हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी फाइनली, जो आपको यहाँ पे ऐड करना है इन सीरीज। चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपकी RG की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई गई है, which is nothing but V upon IG minus capital G। Thus, when the resistance of this value, capital R value का जब एक resistance लिया जाएगा and it is connected in series to the coil of the galvanometer, it becomes behaving as a voltmeter of the gain 0 to V volt। Now, just like ideal ammeter, ideal voltmeter is also a concept for which we assume that there is infinite resistance।
इट बिकम सो हाई दैट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मींस उसके अक्रॉस जो करंट आएगा वो मिनिमम वैल्यू का हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो आपका वोल्ट मीटर बिहेव करेगा एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। फॉर दैट रेजिस्टेंस जो होगा, जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। दैट मींस कैपिटल आर जो है वो लार्ज है, तो लार्ज वैल्यू को जब जी में जोड़ा जाएगा तो अगेन यू गॉट ए लार्ज वैल्यू। इसलिए हम कह सकते हैं दैट आर वी इज नथिंग बट इक्वल टू जी प्लस आर। So this is all about today's class. I'm stopping it here.